हाँ, क्लास बेस्ड मॉडलिंग। तो अभी अपन ने डेटा ऑब्जेक्ट्स की बात की है। अपन ने डिफरेंस देखा कि डेटा ऑब्जेक्ट्स में और क्लासेस में क्या डिफरेंस है, मेनली कि वी कैन नॉट एसोसिएट ऑपरेशंस विद दोस डेटा ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो उससे नुकसान क्या होता है, वी ओनली गेट अ डेटा व्यू ऑफ द सिस्टम, वी डू नॉट गेट एन एक्शन व्यू ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो क्लास बेस्ड मॉडलिंग पर्टिकुलरली तब ही कर सकते हैं व्हेन यू आर ट्राइंग टू यूज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट अप्रोच फॉर योर सिस्टम। If you're not going to use an object-oriented approach, class-based modeling cannot help modeling the requirements of your system. It is very, very important to understand. So, if it is strictly defined or strictly required by the customer to use a framework or use a language or use a platform that is not object-oriented, you should not go for class-based modeling. Okay, this is very, very clearly defined, and it should be kept in mind at all times, right? So class based modeling will help you define classes of objects that have attributes as well as associated operation. तो अपने पास में डेटा ऑब्जेक्ट्स के केस में सिर्फ डेटा अवेलेबल था, उनके एट्रीब्यूट्स थे, बट इन दिस केस वी विल आल्सो हैव एसोसिएटेड ऑपरेशंस एंड वी विल ट्राई टू मॉडल आवर सिस्टम इन टर्म्स ऑफ interaction between these classes, or rather interaction between objects of these classes. ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम डेटा ऑब्जेक्ट्स, जो सारी चीजें अपने डेटा ऑब्जेक्ट्स में डिस्कस की थी कि डेटा ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, यूजर हो सकता है, रोल हो सकता है, थिंग हो सकता है, इवेंट, एक्शन, प्लेस, फाइल, रिसोर्स, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, एक्सटर्नल एंटिटी एंड सो ऑन। इसके अलावा क्लासेस में और क्या क्या आ सकता है, क्लासेस कुड बी कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल, देयर इज अ क्लास दैट प्रोड्यूसेस रैंडम नंबर्स। ठीक है, तो दैट कैन बी अ क्लास, और that could be a class which will take a random number and generate a string from it, or take a random number and generate an image from it. So such kind of such consumer classes can also be made as or denoted as classes within our system. Or consumer can be, let's say, a network service which is trying to read resources from a network and so on. So again, the point is clear that the producers as well as consumers of an information within a particular system can also be made up as classes. Third, there are data managers. Data managers will handle all the data objects of that system. ठीक है, तो डेटा मैनेजर डेटा वैलिडेशन का ध्यान रख सकता है, डेटा स्टोरेज का ध्यान रख सकता है, और उसके अलावा डेटा एनोमली अगर उसमें कोई आती है तो उसको हैंडल करने के लिए भी उसको मैनेज करने के लिए भी कुछ सर्टेन ऑपरेशंस अपन उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जैसे जिनको थोड़ा बहुत एमवीसी आर्किटेक्चर्स के बारे में पता है, तो जो मॉडल्स होते हैं दे आर बेसिकली डेटा मैनेजर्स, एंड इन मोस्ट एमवीसी आर्किटेक्चर्स मॉडल्स आर इम्प्लीमेंटेड एज क्लासेस ओनली। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्जर्वर्स। ऑब्जर्वर क्लासेस हो सकती है। ऑब्जर्वर क्लासेस क्या होती है, लेट्स से इन केस ऑफ एसिंक्रोनस एक्टिविटीज। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को कोई इमेज डाउनलोड करनी है इंटरनेट से, मैंने एक सॉफ्टवेयर लिखा है, उस सॉफ्टवेयर में वो लेट्स से मेरे सर्वर से जितने फ्री इमेजेस हैं उनको डिस्प्ले करता है, ताकि आप उनमें से कोई भी एक चूज करके अपने सॉफ्टवेयर का बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा, the task of downloading all those images from the server will take some time. So as soon as I click on choose background image, there will come a pop-up or kind of an interface where all those thumbnails of all those images will be displayed in a grid view or something like that. But to prepare that grid view will require that all those images are downloaded from the server first, or all those thumbnails are downloaded from the server first. So this task can take some time. And if we use the same thread to download those images from the server, our application can become non-responsive. So there could be a case that our application will hang up until all those images are downloaded from the server. In that case, what I can do, I can create an observer which will observe this event of downloading the applications from the server, and this particular task will be executed in a different thread. So as soon as the observer will observe that all the images have been downloaded, it will notify our main applications that the images have been downloaded. Now you can start rendering or start showing those images on your pop-up panel. ठीक है, तो such functionalities, such observing functionalities. So in this case, this observer was observing an activity of downloading the images. Similarly, this observer could be
observing any particular event to handle, any particular user action to handle, and so on. So there could be some observer operations also, observer classes also. Then there are helpers. For example, let's say you want to store a particular text or a customer record in terms of a PDF. Then the class handling all the PDF related operations. So where you can create a PDF file, create text notes within that PDF file, image notes within that PDF file, and finally saving that PDF file. All those operations can be implemented within a helper class called PDF helper, right? So then in this case, we can have helper classes also. Apart from this, we have boundary or interface classes. So these interface classes will be dealing with the interface components of our system. So a form class is an interface related class. Okay, finally, there are controller classes. Controller classes will handle everything, all the consumer, producers, observer, helpers. So controllers are mainly like the main, like a supervisor. Supervisor will create, let's say, consumers, will create producers, will ensure that consumer can interact with the producer, and the proper data flow is being managed between consumer and producer. So that such roles can be performed using controller classes. So controller classes will be mainly the uh, or I can say the start point of every operation within that particular system, from where you can initiate further operations. You can use other classes within your system. Okay. तो अपार्ट फ्रॉम डेटा ऑब्जेक्ट्स को तो अपन क्लासेस के टर्म्स में डिफाइन करते ही करते हैं, एंड ऑल्सो देर आर सम दीज अदर क्लासेस that are related to the operations that are to be performed within the system. It is very important. अपन जनरली क्या करते हैं, डेटा ऑब्जेक्ट्स तक ही सोचते हैं, इन दूसरी टाइप की क्लासेस के बारे में कम सोचते हैं. हाँ नजुद्दीन, बस ये क्लास बेस्ड मॉडलिंग कंप्लीट कर देते हैं. मेरे को भी लग रहा है थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, पर इसको एक टॉपिक स्टार्ट कर दिया, इसको कंप्लीट करके फिर खत्म करते हैं. ठीक है. और जब अपन क्लास डायग्राम्स की बात कर रहे हैं, तो द थर्ड पॉइंट इज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफाइन इंटर रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस एंड हाउ क्लासेस विल कम्युनिकेट विद ईच अदर. ठीक है. तो जब अपन क्लास की बात करते हैं तो अपन बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं. फ्रेंड फंक्शंस पढ़े हैं आपने, आपने इनहेरिटेंसेस पढ़ी है, आपने इंटरफेसेस पढ़े हैं, एंड सो ऑन. तो देर आर मेनी केसेस, देर आर मेनी वेज ऑफ relationships that these classes can have and how they can communicate with each other. अपने प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ा है, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, एंड सो ऑन. So these also has to be defined within your class based models as well. ठीक है. फिर पोटेंशियल, इसके अंदर पॉइंट्स क्या क्या हैं, कि एक तो इन्फॉर्मेशन रिटेंशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अपने को ये दिखना है. तो अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि मोमेंटरीली है, लेट्स से छोटा सा एक मैसेज यहाँ से वहाँ भेजना है, तो उस कोशिश करेंगे कि उसके लिए क्लास ना बनाए. ठीक है. लेट्स से अगर सिर्फ मेरे को दो पैरामीटर्स इधर से उधर भेजने हैं, कोशिश करेंगे उसके लिए क्लास मॉडल ना करें. हो सकता है इम्प्लीमेंटेशन में बना दें. लेट्स से अगर आपको कोई स्टूडेंट रिकॉर्ड एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, पर उसके अंदर एक फर्दर एक छोटा सा रिकॉर्ड और है, लेट्स से सेमेस्टर मार्क्स. ठीक है. तो अपन इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे ऐसी क्लास बना सकते हैं सेमेस्टर मार्क्स, बट एट द लेवल ऑफ मॉडलिंग दो सेमेस्टर मार्क्स आर एट्रीब्यूट्स ऑफ स्टूडेंट, द रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एंड सेमेस्टर. ठीक है. सो दे शुड नॉट बी मॉडल्ड एज अ सेपरेट क्लास. ठीक है. तो इन मॉडलिंग वी डू नॉट गो फॉर सच इंफॉर्मेशन विच आर नॉट रिटेन्ड ओवर टाइम विद इन आवर सिस्टम. सेकंड इज ऑपरेशनल नीड. देयर शुड बी नीड फॉर सच ऑपरेशंस विद इन आवर सिस्टम. अदरवाइज अगर कोई ऑपरेशनल नीड नहीं है, कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होने वाला है, तो अपन उस क्लास को डिफाइन नहीं करते हैं. वी लेट इट रिमेन टू बी अ डेटा ऑब्जेक्ट. ठीक है. फिर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स अगर हैं तो ही अपन उसको क्लास बनाएंगे. अगर सिंगल एट्रीब्यूट है, कोई भी ऐसी क्लास बना रहे हो जिसके अंदर एक ही डेटा ऑब्जेक्ट या एक ही डेटा मेंबर होने वाला है, तो फिर अपन उसको क्लास नहीं बनाते हैं. अपन उसको किसी और क्लास के अंदर एट्रीब्यूट बना देते हैं. ठीक है. तो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट एड्रेस के लिए अपन अलग से क्लास नहीं बनाएंगे. ठीक है. अब अगर एड्रेस के अंदर अपन फर्दर फील्ड्स डिफाइन कर रहे हैं, सिटी है, स्टेट है, कंट्री है, स्ट्रीट है, एंड सो ऑन, पिन कोड है, तो फिर हो सकता है उसके लिए अलग क्लास बना दें. पर अगर एड्रेस इज अ टेक्स्ट ओनली, इज अ स्ट्रिंग ओनली, तो फिर अपन क्या करेंगे, उसको स्टूडेंट क्लास में ही एक एट्रीब्यूट बना देंगे, अलग से क्लास नहीं बनाएंगे. फिर उसके बाद में देयर कुड बी कॉमन एट्रीब्यूट्स बिटवीन क्लासेस.
ठीक है, तो देयर कुड आल्सो बी द केस कि मल्टीपल क्लासेस के बीच में कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं, देन वी शुड ट्राई टू डिफाइन दोस कॉमन एट्रीब्यूट्स विद टाइप using a kind of relationship. We can use inheritance kind of a mechanism or generalization kind of a mechanism to denote those common attributes. फिर हो सकता है कॉमन ऑपरेशंस हो, दो या ज्यादा क्लासेस के बीच में कुछ ऑपरेशंस होंगे जो कॉमन होंगे, जो कि सारी क्लासेस परफॉर्म कर रही होगी। तो ऐसे कॉमन ऑपरेशंस को डिफाइन करने के लिए अपन एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस या इंटरफेसेस और इस तरह के स्ट्रक्चर काम ले सकते हैं। फिर अपन उनको उन ऑपरेशंस को सारी क्लासेस में डिफाइन नहीं करेंगे। और फाइनली लास्ट, कि अगर वो क्लास बनाना एसेंशियल हो तो ही बनाएंगे, जबरदस्ती सिर्फ बैठे बैठे हम बोले मेरी प्रोजेक्ट में 50 क्लास हैं, दूसरा कह रहा है 70 है, मेरे कह रहे 100 है, तो कंपटीशन में नहीं आना है। इफ अ क्लास इज एसेंशियल ओनली देन वी विल मेक इट, अदरवाइज वी वोंट मेक इट। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स अपने को ध्यान में रखने होते हैं जब अपन क्लासेस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तब। ठीक है, ये डायग्राम मैं स्किप कर रहा हूँ, इट इज ओनली शोइंग कि क्लास क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो क्लास इज अ वायर फ्रेम एंड ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंशिएशन ऑफ दैट क्लास, ये अपन डिस्कस करना जरूरी नहीं मानता। फिर क्लास डायग्राम पे आ जाते हैं। क्लास डायग्राम में क्या होता है, ऊपर क्लास का नाम लिखा होता है, फिर पहले सेक्शन में अपन सारे एट्रीब्यूट्स लिख देते हैं, उनके डेटा टाइप्स आ जाते हैं, एट्रीब्यूट्स के नेम आ जाते हैं। उसके अलावा अपन उनकी विजिबिलिटी डिफाइन कर सकते हैं कि वो पब्लिक है, प्लस मतलब पब्लिक, माइनस मतलब प्राइवेट, हैश मतलब प्रोटेक्टेड। और फिर सेकंड ब्लॉक में अपन सारे ऑपरेशंस डिफाइन कर देते हैं। तो अगेन ऑपरेशंस और उनकी विजिबिलिटी आ जाएगी, उनके पैरामीटर्स आ जाएंगे, कौन कौन से पैरामीटर्स वो लेते हैं, उनका रिटर्न टाइप आ जाएगा, वो क्या रिटर्न करेंगे, और पैरामीटर्स का डायरेक्शन आ जाएगी, वेदर इट इज एन इनपुट पैरामीटर और एन आउटपुट पैरामीटर, और इट कुड आल्सो बी एन इन आउट। so two way parameter can also be there। तो ये सारी चीजें अपन एक क्लास डायग्राम में स्पेसिफाई करते हैं। फिर जब क्लास डायग्राम की बात करते हैं तो ये सारे टाइप के रिलेशनशिप हो सकते हैं, एसोसिएशन, इनहेरिटेंस, रियलाइजेशन, डिपेंडेंसी, एग्रीगेशन, कंपोजिशन। इनमें से काफी सारे आपने ईआर डायग्राम के कंटेक्स्ट में पढ़ रखे हैं और इनका मतलब वहाँ और यहाँ सेम है। कुछ चीजें अलग है, वो अभी मैं डिस्कस कर लूंगा। और उसके अलावा कार्डिनलिटी हो सकती है, जब भी कोई रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं किसी दो क्लास के बीच में, तो उनकी कार्डिनलिटी क्या हो सकती है कि इट कुड बी exactly one, there will be only one and unique instance related to another unique instance of a class. There could be zero or one, there could be zero or more, one or more, and ordered, there could be an order between the relationship between different objects of the class। ठीक है, तो ये काफी ऑब्वियस चीजें हैं, अपन इनको डिस्कस नहीं कर रहे, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। द फर्स्ट पॉइंट इज एग्रीगेशन वर्सेस कंपोजिशन। तो एग्रीगेशन और कंपोजिशन दोनों ही क्या बताते हैं, दोनों ही हिरार्की बताते हैं, दैट अ क्लास हैज सम काइंड ऑफ अ सब क्लास। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल लेट्स से you have a class called student and you have further classes called B student, ME student and PhD students. So B, ME and PhD students are like subclasses of the main class student itself, right? We can define this relationship using inheritance, but if we talk about the context of our complete system, then all such students combinedly together will form the student class. Let's say I can say our institute has a body called student body. So then student body will be formed by all such kind of students. So a student body will include our BE students, ME students, PhD students and so on. ठीक है, तो दिस इज एग्रीगेशन। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कंपोजिशन दैट इज अगेन सेम। सो देयर आर मल्टीपल सब क्लासेस which when combined together will make a base class, but the only difference is that the participation is optional. There could be a case that one of those subclasses may not participate in that particular relationship. And sorry, when there is no there is an optional clause, we call it aggregation. When there is a mandate that all of them will have to combine together to make the superclass work as intended, then it is composition. Aggregation is optional participation, composition is mandatory participation of all the subclasses for executing or for making the functionality of base class possible. Fine. So more of a nested class kind of a thing. So a main class can have many nested classes
So, and if all nested classes are mandatory for that base class, let's say objects of all those nested classes are being used as attributes by the base class, and that is a composition. And if objects of some of the base classes are not used by the base class directly, but rather those nested classes are used, or the operations of those nested classes are used through parameter passing, then we can call it aggregation. Okay. Next, we'll talk about realization and interfaces. So there could be a case where a particular functionality or where a particular class cannot be implemented directly. It is not associated with any data object or the operations possible on that data object, but it is there only in concept. For example, let's say we are modeling some kind of a bird scenario. So there is a base class called bird, and then there are small subclasses called birds who can fly, birds who cannot fly, and then further we have further in inheritance we have a bird who can walk, bird who can swim, and so on. So in all these cases, the base class bird can have two functions, fly and swim, but not both of them are possible to be implemented by all of them. So I create another class called flying objects. Okay, and now any bird class that implements this interface called flying objects can fly, and if it doesn't implement flying objects, then it cannot fly within my system. So such relations are called realization. So let's say if there is a class called birds who can fly, and there is an interface called flying object, a flying capability, then there will be a relation between these two classes, and it will be denoted by realization. In Java, and we implement such kind of relationship using interfaces, and in C++, we use abstract classes to denote such kind of relationships. Okay, and finally there are packages, and packages are used for making groups of classes for the sake of namespaces and organization, so that similar classes can be organized together and can be used or maintained properly within our system. ठीक है, अभी क्लास बेस्ड मॉडलिंग का ये लास्ट एक छोटा सा डायग्राम और है कि वंस द क्लासेस आर मेड, ठीक है, जब अपन ने सारी क्लासेस बना दी, हर क्लास का इंडिपेंडेंटली अपने एट्रीब्यूट्स और एक्शंस जो हैं डिफाइन कर दिए, देन वी टॉक अबाउट कोलैबोरेशन बिटवीन दीज क्लासेस। और हर क्लास के लिए अपन फिर क्या करते हैं, ऐसा ऐसा एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें हम क्लास का नाम लिखेंगे, अगर कोई डिस्क्रिप्शन लिखना है, इट कुड बी टेक्स्ट बेस्ड डिस्क्रिप्शन ओनली, और फिर अपन उस क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखते हैं कि वो क्लास क्या क्या काम करती है, बाई फॉर व्हाट विच रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट क्लास कैन कंट्रीब्यूट। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहाँ से आएगी, अपनी यूज केसेस से आएगी। ठीक है, तो फॉर डिफरेंट डिफरेंट यूज केसेस, वेदर दिस क्लास इज कोलैबोरेटिंग विद इन दैट पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी के सामने अपन कोलैबोरेटर क्लासेस का नाम लिखते हैं, यानी ऐसी कौन सी दूसरी क्लासेस हैं जो कि अपने को सपोर्ट करेगी विद इन एग्जीक्यूटिंग दिस पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट क्लास। फॉर एग्जाम्पल, इनकॉर्पोरेट्स वॉल, डोर्स एंड विंडोज। तो इसमें लेट से अगर अपन ने फ्लोर प्लान नाम की क्लास बनाई है, और उस फ्लोर प्लान में क्या है, वॉल्स हैं, डोर्स हैं और विंडोज हैं, तो अगर वॉल नाम की अलग से क्लास है, तो वो उसको क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर फंक्शनलिटी को अचीव करने के लिए इस फ्लोर प्लान नाम की क्लास के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। सिमिलर क्लासेस जो कि एक ही ऑपरेशन परफॉर्म करने में काम आएगी, उनको अपन कोलैबोरेशन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब ये क्यों करते हैं, क्यों बनाते हैं, इससे क्या होता है, अपन को क्लासेस के इंटरडिपेंडेंस के बारे में पता चलता है। तो फाइनली अगर अपन अपने जो टास्क है, अपना जो प्रोजेक्ट है, उसको टीम और सब टीम्स और इंडिविजुअल्स में डिवाइड करना चाहते हैं, तो इस कोलैबोरेशन डायग्राम की मदद से अपने को पता चल जाता है कि कौन-कौन सी क्लासेस जो हैं वो एसोसिएटेड हैं। तो उन क्लासेस, वो क्लासेस जिस-जिस मॉड्यूल में काम में आ रही है, वो एक ही पर्टिकुलर टीम को देना है, अलग-अलग टीम को नहीं देना है, या फिर अलग-अलग टीम को दे रहे हैं तो उनके बीच में कॉमन कम्युनिकेशन चैनल एस्टेब्लिश करना है, ताकि वो लोग सिंक्रोनाइजेशन टास्क परफॉर्म कर सकें। उनको कोई डाउट हो तो एक-दूसरे से डिस्कस कर सकें। ठीक है, तो इससे अपना क्लास बेस्ड मॉडलिंग कंप्लीट हो जाती है। तो क्लासेस से मेजरली क्लास एक ऐसा कंपोनेंट है जो किसी भी सॉफ्टवेयर के स्ट्रक्चर को भी डिफाइन करता है,
कि वो सॉफ्टवेयर क्यों बना रहे हैं, उसमें कौन-कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, किन-किन चीज़ें, कौन-कौन सा डेटा एसोसिएटेड है, एंड एट द सेम टाइम इट आल्सो depicts or models the behavior or the actions of that particular software or that particular project. तो इसलिए क्लास बेस्ड मॉडलिंग बहुत अच्छी चीज है, बट इसकी रेस्ट्रिक्शन है कि ये सिर्फ तब काम लेते हैं अपन जब अपन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हो। जब अपन प्रोसीजर ओरिएंटेड करेंगे तब क्लास बेस्ड मॉडलिंग काम नहीं आएगी, क्योंकि आप बना दोगे पर बाद में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगी, आपका सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक अपन ने 3 मॉडलिंग पढ़ी है, पर एक चीज़ जो थोड़ा-सा मैं यहाँ डाउट क्लैरिफ़ाई कर देना चाहता हूँ, कि ज़रूरी नहीं है कि हर रिक्वायरमेंट के लिए सारी तरह की मॉडलिंग की जाए। अगर आप अपने सॉफ्टवेयर की कोई एक रिक्वायरमेंट उठा के लाते हैं, तो देयर इज़ अ वेरी पॉसिबल केस कि यूज़ केस तो हर एक रिक्वायरमेंट के लिए बनेगा ही बनेगा। विदाउट यूज़ केस इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफ़ाई कि करना क्या है। बट वन्स यूज़ केस इज़ डिफाइंड तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी डेटा मॉडलिंग भी और क्लास मॉडलिंग भी। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन योर सिस्टम, डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट, यू कैन डू आइदर ऑफ देम, यू कैन डू बोथ ऑफ देम, यू और यू कैन चूज़ नॉट टू डू एनी ऑफ देम एंड गो फॉर सम अदर काइंड ऑफ मॉडलिंग एज़ वेल। ठीक है? तो अपने को ये चीज़ समझनी है कि अपन बस अपना मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो रिक्वायरमेंट मिली है, उस रिक्वायरमेंट को मॉडल करना है, ताकि ईज़िली वो रिक्वायरमेंट सबको समझ में आ जाए, और अपने को ओवर मॉडलिंग भी नहीं करनी होती है। कि नहीं अब तो सारे डायग्राम बनाऊँगा, मैं तो यूज़ केस भी बनाऊँगा, एक्टिविटी बनाऊँगा, क्लास भी बनाऊँगा, ईआरडी बनाऊँगा, सीक्वेंस भी बनाऊँगा, सब बनाऊँगा। ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, बट दैट विल बी कॉल्ड एज़ ओवर मॉडलिंग दैट सिस्टम। So देयर कुड बी सम केसेस, कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी हो सकती है जब जिनके लिए आपको ये सारा बनाना भी पड़े, दैट कुड आल्सो बी द केस। पर इट इज़ नॉट अ मैंडेट कि आप हर रिक्वायरमेंट के लिए सारे मॉडल्स डिफाइन करें ही करें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। ज़्यादातर लोगों को यही कन्फ्यूज़न होता है जब डॉक्यूमेंट बनाने बैठते हैं, तो हर रिक्वायरमेंट के लिए सारे-सारे डायग्राम्स बनाने की कोशिश करते हैं। अपन क्या करते हैं, डीएफडी बनाने बैठे हैं, तो अपने सिस्टम के सारे जो भी फंक्शनैलिटीज़ है सबको डीएफडी में इंक्लूड करना ही करना है। So that is not the right way to do things. We always try to ensure कि जो अपना मॉडल है वो मिनिमलिस्ट होना चाहिए, इट शुड बी सिंपल एंड इट शुड ओनली इंक्लूड द एसेंशियल डायग्राम्स, एसेंशियल कंपोनेंट्स, ताकि वो मिनिमल वे में अपन उसको अपनी डिज़ाइन टीम को प्रोवाइड कर सकें।